ایک چھوٹی سی کہانی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ واقعہ رونما ہوا جو میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں۔ ورلڈ وار سیکنڈ کے اندر ایک ایئر کرافٹ، ایک جنگی جہاز، اس کو ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑی برما کے جنگلوں میں۔ اس کو نیچے سے کوئی گولی لگ گئی تھی، تو جنگلوں میں اس ایئر کرافٹ کو لینڈ کیا گیا، اور جیسے ہی وہ زمین پہ اترا، پائلٹ اس میں سے نکل کے بھاگ گیا۔ تو کچھ دن کے بعد وہاں پر جنگلی لوگ آئے جنہوں نے اس سے پہلے جہاز نہیں دیکھا تھا، ایئر کرافٹ نہیں دیکھا تھا، اڑنے والی انہوں نے مشین نہیں دیکھی تھی۔ وہ جنگل میں رہتے تھے لوگ۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز کھڑی ہے جس کے نیچے پہیے ہیں، ویلز ہیں۔ تو جنگلی لوگوں نے اس کے جو پر تھے وہ اتار دیے، اور اس کو اپنی گائے بھینسوں کے چارے کے لیے اس کو استعمال کرنے لگے۔ اس کے آگے انہوں نے اپنے بیل جوت دیے، تو اس میں گائے بھینسوں کا، مویشیوں کا چارہ رکھ کے وہ ادھر ادھر لے کے جاتے، جو بھی اپنا کام تھا ان کا۔ کچھ دن کے بعد اس جنگل میں کچھ شکاری آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جنگلی لوگ، یہ جنگل میں رہنے والے لوگ، یہ جو کارٹ یعنی ایک چھکڑا، جس کو چھکڑے کے طور پر، ایک کارٹ کے طور پر جس کو یہ یوز کر رہے ہیں، یہ کوئی عام چیز تو نہیں، یہ تو کوئی جہاز لگتا ہے، کوئی ایئر کرافٹ لگتا ہے۔ تو ان شکاریوں نے جو شہر سے آئے تھے ان جنگلیوں سے پوچھا کہ بھئی آپ کو یہ کہاں سے ملا؟ انہوں نے کہا ایسے ہم نے اسے جنگل میں کھڑا ہوا پایا ایک جگہ پہ، تو ہم نے اس کے پر اتارے اور اس کو اپنے مویشیوں کے لیے، اپنے گائے بھینسوں کے چارے کے لیے ہم اس کو یوز کر رہے ہیں۔ تو ان شکاریوں نے ان جنگلی لوگوں کو بتایا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ اڑنے والی مشین ہے، یہ آسمانوں میں اڑتی ہے یہ مشین۔ لیکن ان جنگلیوں کو کوئی بھروسہ نہ آیا۔ خیر وہ شکاری شہر واپس گیا، تو وہاں سے وہ باقاعدہ انجینئرز اور پائلٹ کی ایک ٹیم لے کر آئے۔ ان انجینئرز نے اس جہاز کو دوبارہ اسیمبل کیا، وہ جہاں پر اس کے پر پڑے تھے پر لے کر آئے، اس کو جوڑا اور اس کی پوری ریپیئرنگ کی، اور پھر وہ اس کو انہوں نے اڑایا۔ تو جب وہ جہاز اڑا تو جنگلی لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے، جس کو ہم اپنی کارٹ کے طور پہ، اپنے چھکڑے کے طور پہ یوز کر رہے تھے، وہ مشین اب اڑنے لگی ہے۔ وہ جہاز جو ایمرجنسی لینڈ کیا تھا اب اڑنے لگا۔ یہ کہانی آپ کو کیوں سنائی کہ اگر اس جہاز کے پاس زبان ہوتی تو جس وقت اسے وہ جنگلی لوگ اپنے گائے بھینسوں کا چارہ لانے کے لیے استعمال کر رہے تھے، تو وہ جہاز ان کو چلا چلا کر کہتا، او بھائیو، میں کوئی گائے بھینسوں کے چارے کے لیے نہیں بنا، میں تو اڑنے کے لیے بنا ہوں، میں تو اڑنے والی مشین ہوں، اور تم مجھے کس کام پہ لگا رہے ہو؟ یہ کہانی آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ آپ پھنس چکے ہو اس دنیا کے اندر۔ جس کام دھندے میں آپ کو لگا دیا گیا ہے، صبح سے لے کر شام تک گدھا مزدوری جو آپ لوگ کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ نہیں بنے تھے۔ آپ کا مقام کوئی اور ہے۔ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، یہ آپ سے بات کی جا رہی ہے۔ آپ جو بھی ہیں، عورت ہے، مرد ہے، جو بھی میری بات سن رہا ہے، میں آپ کو یہ مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہیں، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی، لیکن آپ
उन्हीं जंगलियों के हाथों में फंस चुके हैं, जिस तरह वो जहाज जंगली लोगों के हाथों में फंस गया और उससे वो अपने जानवरों का चारा ढोने के लिए इस्तेमाल में लाने लगे। आप सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हो, मेहनत करते हो, लाइफ को इम्प्रूव करने का आपके पास कोई टाइम ही नहीं है। कब करेंगे आप लाइफ को इम्प्रूव? कब उड़ने की तैयारी करेंगे? ये आपके आसपास जो जंगली हैं, कौन से जंगली हैं ये भी मैं आप बताता चलूं। किन लोगों के हाथों में आप फंस गए हैं। इकबाल ने क्लियरली कहा, बाकी ना रही तेरी वो आई ना ज़मीरी, ए कुश्ताए सुल्तानियों मुल्लाइयो पीरी। तेरी वो जो सलाहियतें थी उड़ने की, परवाज करने की, बुलंद परवाजी की, वो कैसे सल्ब हुई, कैसे जब्त हुई, कैसे खराब हुई, कैसे ख़त्म हुई। ए कुश्ताए सुल्तानियों, तुम्हारे सियासतदानों ने, मुल्लाइयो पीरी, तुम्हारे मुल्लाओं, तुम्हारे पंडितों, पादरियों, तुम्हारे पीरों, तुम्हारे प्रोफेसरों और तुम्हारे डॉक्टरों ने, तुम्हारे लीडरों ने तुमको उलझा दिया। एक ऐसा निज़ाम बन गया कि सुबह से लेकर शाम तक आप मेहनत मजदूरी करते हो और ज़िंदगी की जो आम बेसिक ज़रूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती। लगता है कि आप किसी और के लिए काम करते हो। बस आपको तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। इस रोज़ी रोटी की फ़िक्र से निकलें, अपनी ज़रूरियात को कम करें। कुछ ज़रूरियात हमेशा कुछ ही होती हैं और आपने कुछ ख्वाहिशात और कुछ आसाइशात और फजूल किस्म की चीज़ों को अपनी ज़रूरियात में शामिल कर लिया है। तो ज़िंदगी को ज़रूरियात की तरफ लेकर आएँ, ज़रूरियात तक महदूद करें, तभी ही आप उड़ने के लिए अपने ऊपर कुछ काम कर पाएंगे। वरना फंस गई जान शिकंजे अंदर, ज्यों वेलन बिच गन्ना, वरना तो फंसे ही रहोगे। पूरी दुनिया का इंसान फंसा ही हुआ है। असरे हाज़र मलकल मौत है तेरा जिसने, कब्ज़ की रूह तेरी दे के तुझे फ़िक्र मुआश। ये जो रोज़ी रोटी की फ़िक्र है, ये जो ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ों को पूरा करने के लिए ये जो परेशानी है, असरे हाज़र, ये जो मौजूदा दौर है, मौजूदा टाइम है, क्यों हो गया इतना मुश्किल ये काम कि 12-12 घंटे की मेहनत के बाद भी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। असरे हाज़र मलकल मौत है तेरा जिसने, कब्ज़ की रूह तेरी दे के तुझे फ़िक्र मुआश। सुबह सूरज निकलता है तो आप रोज़ी रोटी की तलाश में निकलते हो और दिन भर की मुशक्क़त और मेहनत के बाद जब घर लौटते हो, ना आराम का वक्त, नींद इन लोगों की पूरी नहीं होती। एक छुट्टी का दिन आता है तो वो सो के गुजार देते हैं लोग। तो बुलंद परवाज़ी का एहतमाम कब आप करेंगे? इसके लिए टाइम चाहिए। ये 12-12 घंटे काम मत करें। इन्हीं 24 आवर्स के अंदर ही आपको कोई टाइम निकालना होगा। मत कंप्रोमाइज़ करें सेल्फ डिस्कवरी पर, मत कंप्रोमाइज़ करें परवाज़ पर। अगर नौकरी जाती है तो जाए, रोज़ी रोटी का एहतमाम हो जाएगा। किसी और रास्ते को ढूंढ लें, लेकिन अपने लिए टाइम निकालें, क्योंकि अगर आपने बुलंद परवाज़ी का एहतमाम ना किया, सेल्फ डिस्कवरी ना की, तो ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगी। इंसान ने अपने आप को गिरवी रख दिया है। किसी ने बैंकों में अपने आप को गिरवी रखा है, किसी ने स्कूलों में टीचिंग के नाम के ऊपर अपने आप को गिरवी रखा है, नौकरी धंधे के नाम के ऊपर अपने आप को गिरवी रखा हुआ है। कब्ज़ की रूह तेरी दे के तुझे फ़िक्र मुआश, दिल लरसता है हरीफाना कशाकश से तेरा। जो कैदी है उसका दिल नहीं लरजेगा तो और क्या होगा कि कब मारा जाऊं, कब नौकरी से निकाल दिया जाऊं, न जाने क्या होगा। दिल लरसता है हरीफाना कशाकश से तेरा, ज़िंदगी मौत है खो देती है जब ज़ौक़े खराश। और जो रिस्क नहीं लेता वो जीते जी ही मरा होता है। तो रिस्क लेना सीखें लाइफ के अंदर। आप बुलंद परवाज़ी के लिए, सेल्फ डिस्कवरी के लिए अगर कोई रिस्क लेंगे, मैं ये ज़िम्मेदारी लेता हूँ, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, जो भी बुलंद परवाज़ी के लिए, सेल्फ डिस्कवरी के लिए, लाइफ की इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो भी टाइम निकालेगा, उसका टाइम ज़ाया नहीं होगा। पूरा निज़ाम कुदरत आपके साथ होगा। कुछ अनदेखी पावर्स, एनर्जीज़ वो आपकी हेल्प करेंगी। लेकिन अगर आप नौकरी धंधे के अंदर उलझ गए,
नौकरी धंधे कोई अगर आपने मकसद और मंजिल समझ लिया तो फिर आप खुद जिम्मेदार हैं। दिल लरजता है हरीफाना कशाकश से तेरा, जिंदगी मौत है खो देती है जब ज़ौक़ खराश। और फैज़ फितरत ने तुझे दीदाए शाही बख्शा, खुदा ने बाई बर्थ तुम्हारे अंदर एक शाहीन की आंख रखी है, तुम्हारे अंदर बुलंद परवाज़ी का बीज रखा है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, फैज़ फितरत ने तुझे दीदाए शाही बख्शा, जिसमें रख दिया ग़ुलामी ने निगाह खुफ़ाश। किस चीज़ की ग़ुलामी? यही रोज़ी रोटी की ग़ुलामी, यही नफसानी ख्वाहिशात की ग़ुलामी, यही अपनी गैर ज़रूरी ज़रूरियात को पूरा करने की ग़ुलामी। इसको कभी आप पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर आप बुलंद परवाज़ी चाहते हैं, मैं शाहबाज करां परवाज़ विच दरिया करम दे, अगर आप शाहबाज बनना चाहते हैं तो एक ही सूरत है, अपने लिए टाइम निकालें, अपने ऊपर काम करें। खामोशी से डेली 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें। 1 घंटा शाम को अपने लिए निकालें। खामोशी से बैठ जाएं, आंखों को बंद करके, कुछ मत करें। मैं आपसे कह रहा हूँ, खामोशी से बैठ जाएं, कुछ मत करें। आपका करना जिस्मानी और ज़हनी तौर पर जो आपकी भाग दौड़ है, यही आपको भारी करती है, यही आपको इस ज़मीन पर चिपका के रखे है। जैसे ही आप खामोशी से डेली तन्हाई में बैठेंगे तो आपके इस वजूद के अंदर, आपके इस माइंड के अंदर जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं, जो बोझ बन रहा है, वो रुक जाएगा और उड़ता वही है जो हल्का होता है। तू ऐ मुर्गे हरम उड़ने से पहले पर फिशां हो जा। तू मुर्गे हरम है, तू शाहीन है, तुझे पर फिशां होना पड़ेगा, तुझे अपने पर झाड़ने पड़ेंगे। तुम्हारे परों के ऊपर जो ख्वाहिशात की धूल, जो आसपास के माहौल का जो बोझ, स्ट्रेसेस हैं, जस्ट सिट, खामोशी से आंख बंद करके बैठें, वो सारा बोझ, वो स्ट्रेसेस मिनिमाइज होना शुरू हो जाएंगी और आपकी परवास, लाइट फीलिंग, बॉडी लेसनेस की फीलिंग, लावजूद का एहसास, कायनाती होने का एहसास, यूनिवर्सल होने का एहसास, जिसके बारे में इकबाल कहता है, आलम है फ़कत मोमने जांबाज की मिरास। और मोमन नहीं जो साहिबे लो लाक नहीं है। आपकी परवास कायनात में होनी चाहिए, कायनाती होने चाहिए आप। कारवां थक कर फिज़ा के पेचो खम में रह गया, मेहरो माहो मुश्तरी को हम अना समझा था मैं। ये चाँद सूरज सितारे ये सब पीछे रह जाएंगे जब आप अपनी बुलंद परवाज़ी, अपने असली काम की तरफ ध्यान देंगे। आपने भी इस ज़मीन पर एमरजेंसी लैंडिंग ही की है। इंसान की ज़मीन पर एमरजेंसी लैंडिंग ही है, लेकिन यहाँ पर आकर वो फंस गया है। ये बात आपको याद आए कि आप उड़ने वाले हो, यहाँ पर फंसने के लिए नहीं, यहाँ पर रुकने के लिए नहीं। ये आपका मकाम ही नहीं है, ये ज़मीन आपका घर ही नहीं है, ये वतन ही नहीं है आपका। आपका मकाम ही कोई और है।